So hi everyone, welcome back to our channel Ocean of Dentist. Today we are going to start our new topic, that is a scalp. This lecture is powered by Dr. N. Muganthan and he is a MBBS MS DNB in DNB and he is Associate Professor of Anatomy in Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute. So this PPT is taken from Dr. N. Muganthan sir lecture classes. So now we start our topic, that is a scalp. Before proceeding to the lecture, if you are new to our channel, please do like, share and subscribe to our channel and also watch other videos and press the bell icon for more updates. Now I'm going to start the lecture. So, what we need to study in the scalp? In the scalp, you will study the different layer of a scalp, the nerve supply of a scalp, the blood supply of a scalp, the lymphatic drainage of a scalp, and the applied anatomy. Since the applied anatomy is important from the NEET PG point of view, also for the short note and exam point of view. This topic scalp comes as a long note and sometimes as a short note. So dangerous area of scalp, black eye and the imaginary vein is very important as a short note and in the clinical point of view. Sorry. Now, starting with the topic, a scalp. A scalp is nothing but according to the BD Chaurasia, they tell it is a soft tissue. Here every word has some meaning. It is a soft tissue which cover the calvaria of a skull. Means it is a soft tissue. यह एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है जो कि हमारे स्कैल जो स्कल है उसके क्रैनियल वॉल्ट जो है उसको कवर करके चलता है, एक सॉफ्ट टिश्यू का लेयर. ठीक है. जो एक्सटेंट है ये फ्रंट पोर्शन से, मतलब फ्रंट पोर्शन से सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ऑर्बिट के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल नाम से क्लियर है. देखो एनाटमी जब भी पढ़ो तो उसके जो वर्ड्स आते हैं उसको ब्रेक करके पढ़ना सीखो. सुप्रा ऑर्बिटल, ओके. सुप्रा ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिट के ऊपर. तो फ्रंट में कहां से है? सुप्रा ऑर्बिटल ऑर्बिट के ऊपर से शुरू होता है. पीछे की तरफ जाएंगे, बिहाइंड पीछे की तरफ जाएंगे तो आगे देख लिया, आगे कहां तक है? पीछे की तरफ आ जाओ. पीछे जो है वह है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस के पास, सुपीरियर न्यूकल लाइन. मीन्स जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस है, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, मैं अगर आपसे बात करूं कि पीछे की तरफ अगर मैं बात करूं तो जो ये हमारा स्कल है, ठीक है, और ये हमारा आई का लेयर है. तो सुप्रा ऑर्बिटल यहां से शुरू होता है, ये ऑर्बिट के जस्ट ऊपर, और एक सॉफ्ट टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है यहां तक. ओके, दैट इज बिहाइंड द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस. और दोनों साइड की अगर बात करूं तो ये हमारा जाइगोमेटिक प्रोसेस है, तो यहां पे ये होता है. देन वी हैव द 5 layers of a scalp. See, a scalp itself exists as S, C, A, L, P. Here every word, every alphabet has a meaning. S here represents the skin, which is the outermost covering. Then we have the cutaneous, C for cutaneous tissue or subcutaneous tissue. A for aponeurosis means gallia aponeurotica and the covering the occipital frontalis, occipitofrontalis muscle. Means एक occipitofrontalis जो muscle है उसको cover करता है ये. Then L, L here represents loose alveolar tissue, that is subaponeurotic tissue, and P here represents the pericranium. Skin, स्किन जो सबसे पहला एस जो हमने पढ़ा है स्कैल्प में, एस स्किन हेयर रिप्रेजेंट्स द हेयर, सीबेसियस ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड. ओके, ये हेयर हो गया, इसके जस्ट नीचे सीबेसियस ग्लैंड है. एंड देन वी हैव
the then we have the another part that is called then we have C for the cutaneous tissue. सी ये जो क्यूटेनियस टिश्यू होता है ना, ये कंपोज होता है फाइब्रोफैटी टिश्यू से। इसमें ब्लड वेसल, नर्व्स वगैरह का लेयर रहता है। मतलब कहने का ये तो हेयर वाला लेयर हो गया। दूसरा हो गया इसके जस्ट नीचे जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह ये है, और ये है हमारा क्यूटेनियस टिश्यू का लेयर। ओके, इसमें ब्लड वेसल्स रहेंगे, माइनर स्कैल्प इंजरी वगैरह जो होता है वो यहीं से होता है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ में। और जो नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, जो हेमोरेज होता है, लोकलाइज हेमोरेज, ये देख रहे हो ये वाला एरिया, ये सब पेनफुल इन्फ्लामेशन, इनका हीलिंग फास्ट होता है। तो ए सी हो गया। अब ए फॉर द एपोन्यूरोसिस मीन्स गैलिया एपोन्यूरोटिका एंड द ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल के ऊपर जो एक लेयर होता है, कवरिंग होता है, उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करते हैं। एंड देन वी हैव द ओसिपिटो फ्रंटालिस एंड टेम्पोरो पेरिटालिस मसल के ऊपर में एक लेयर होता है। अब देखो ये लेयर था, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक ये हेयर का एक लेयर है, ठीक है। देन यू हैव द सुपरफिशियल फेसिया, ब्लड वेसल वगैरह, जो इसमें ब्लड वेसल वगैरह का जो लेयर होता है सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस टिश्यू का, तो वो हो गया। ये है हमारा स्कैल्प का लेयर। ये देखिए जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये टेम्पोरालिस मसल के ऊपर में जो टेम्पोरली पेराटालिस के ऊपर में जो लेयर है वो। अब गैलिया एपोन्यूरोटिका, ये एक सीट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है ओसिपिटालिस को और फ्रंटालिस मसल को, मतलब ओसिपिटालिस और फ्रंटालिस मसल को। तो ये वाला लेयर गैलिया एपोन्यूरोटिका का लेयर, ये ओके। ये लेयर ऑफ स्कैल्प में हमारे पास है। अब इसका एक्सटेंट कहाँ है? एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस, ये वाला हमारा एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबेंस, और हाईएस्ट न्यूकल लाइन पे। और फ्रंटल पार्ट में क्या है? सबक्यूटेनियस रूट ऑफ द नोज पे, मतलब ये वाला एरिया, ये ठीक है। साइड में जैगोमेट्रिक आर्च, ये वाला जो जैगोमेट्रिक आर्च का एक लेयर होता है यहाँ पे, वो जैगोमेट्रिक आर्च का लेयर दोनों साइड से। तो ये आपके पास जो एपोन्यूरोटिका ए हो गया उसके बारे में है। देन वी हैव एल, लूज एल्यूलर टिश्यू। इसमें लूज सब एपोन्यूरेटिक टिश्यू, पोटेंशियल स्पेस कंटेंस इमेजिनरी वेन। इमेजिनरी वेन क्या होता है? ये आपसे वाइवा में एक्सटर्नल पूछता है, कि वाइवा में पूछ देगा कि इमेजिनरी वेन क्या होता है। देखो इमेजिनरी वेन आर डिवॉइड ऑफ वाल्व्स, वाल्व इसमें नहीं होते हैं। कम्युनिकेट द वेन ऑफ स्कैल्प विथ इंट्राक्रैनियल वीनस साइनस। जो देखो मान लो ये वेन है, इसमें कोई वाल्व नहीं है। जनरली वेन्स में क्या होता है, एक वाल्व होता है, ये जनरल है। बट इसमें क्या है कि इसमें कोई वाल्व नहीं है, और ये इंट्राक्रैनियल वेनस साइनस के साथ कनेक्ट करता है हमारे स्कैल्प के एरिया से। देन वी हैव द डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। द डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्या कहता है कि जो फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प होता है लूज एल्यूलर टिश्यू का, जो हमने पढ़ा ना कि यह एक लूज सब एपोन्यूरोटिक टिश्यू का लेयर होता है, सब एपोन्यूरोटिक टिश्यू का लेयर होता है। तो ये जो लेयर होता है इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो इसमें वाल्व नहीं होता है, इमेजिनरी वाल्व की अगर हम बात करते हैं तो वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है विदाउट एनी वाल्व, उसके साथ कनेक्ट करता है, और ये डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है। फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प होता है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का। इन्फेक्शन जो इनमें होता है इन द सब एपोन्यूरोटिक स्पेस विद द पस कलेक्शन रेडली स्प्रेड करता है टू द इंट्राक्रैनियल साइनस थ्रू द इमेजिनरी वेन। मतलब वाल्वलेस होता है, ये वाल्व नहीं होता है इसमें, और इंट्राक्रैनियल वीनस साइनस के थ्रू ये कनेक्ट कर लेता है। मान लो ये हमारे स्कैल्प का एरिया है, तो इसमें क्या होगा, ये इंट्राक्रैनियल वीनस साइनस के थ्रू कनेक्शन बनाएगा इमेजिनरी वेन थ्रू इमेजिनरी वेन। इमेजिनरी वेन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वाल्वलेस वेन होता है जो कि इंट्राक्रैनियल वीनस साइनस के थ्रू स्कैल्प में सप्लाई देता है, ठीक है। ब्लैक आई, ब्लैक आई क्या होता है? देखो ये ब्लैक आई क्या होता है कि ब्लू ऑफ स्कल होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड
एक ब्लड जो होता है उसका कलेक्शन हो गया है इसमें, और इन द सब एपोन्यूरोटिक स्पेस में ये प्रोड्यूस करता है एक स्वेलिंग। मतलब ये मान लो कि सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है। अब क्या हुआ कि इस एरिया में ब्लड का कलेक्शन हुआ। जब यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हो गया तो इसकी वजह से हुआ क्या, मान लो कि ये ब्लड का कलेक्शन हो गया तो इसकी वजह से हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे ब्लड जब कलेक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो यहाँ पर एक डोम शेप स्कल का स्वेलिंग होने लगेगा, और ये ब्लड स्लोली स्लोली ग्रेविटेट हो जाएगा इनटू द आईलिड, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रंटालिस हैज नो बोनी अटैचमेंट। जो फ्रंटालिस मसल होती है उसमें कोई बोनी अटैचमेंट है नहीं, तो ये धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू नीचे की तरफ ये डाउनफॉल करेगा और फिर वहाँ पे जा करके वो हो जाएगा। देन सेफ्टी वाल्व, दैट इज वाल्व हेमेटोमा। That is, it is a safety valve or valve hematoma is a cranial vault in the children with tearing of dura mater and the pericranium. Blood from the intracranial hemorrhage communicate with the subaponeurotic space, मतलब फोर्थ लेयर जो लूज एल्यूलर टिश्यू का जो लेयर होता है उसके साथ ये कम्युनिकेट करती हैं। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव द पेरिक्रैनियम। जो पेरिक्रैनियम होता है, अब ये आउटर पेरियोस्टियम ऑफ द स्कल, अब ये बोनी सरफेस है, ठीक है। अब देखो ये बोनी सरफेस और इसके ऊपर जो लेयर है ये ब्लैक वाले से जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको बोलता है पेरिक्रैनियम का लेयर, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर मैं डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब आ जाइए, आपको मैं पेरिक्रैनियम समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सुंदर एक डायग्राम के थ्रू। जो स्कैल्प का लेयर, जो बीडी चौरसिया का बुक जब आप खोलते हैं तो पेज नंबर 64 पे आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर से डायग्राम बना है। तो उसको बनाने का तरीका ये है, ये लेयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर में, ठीक है, ठीक है, ये आपको ये हेयर का एक लेयर हो गया, हेयर वाला लेयर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक लेयर हो गया, ये क्या है, ये वाला, ये हो गया हमारा सुपरफिशियल फेसिया, ये हो गया स्किन विथ हेयर, ओके। देन वी हैव एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस, तो एपिक्रैनियल एपोन्यूरोसिस का ये लेयर हो गया, ओके। और फिर हमारे पास हो जाएगा लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ये फोर्थ लेयर हो गया। मतलब हमारे पास एक, दो, तीन, और ये हो गया लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। और यहीं पर जो है ब्लैक आई या फिर जो डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है वो वाला लेयर होता है। देन वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पेरिक्रैनियम। अब ये तो हमारा क्या है, स्कल का लेयर है, तो ये है हमारा पेरिक्रैनियम, ये वाला, ठीक है। पेरिक्रैनियम ये हो गया हमारा ड्यूरा मैटर, और ये हमारा हो गया, सॉरी, ड्यूरल वीनस साइनस। और इसके बीच में एक सूचरल लिगामेंट का लेयर होता है, वो मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर, इस टाइप से एक सूचरल लिगामेंट का लेयर होता है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होता है, फिर मेनिंजियल लेयर वगैरह ये सब, मेनिंजियल लेयर, ड्यूरा मैटर, ये सब का लेयर अपना यहाँ से शुरू हो जाता है, ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये मेनिंजियल लेयर का एक लेयर चालू हो जाता है। सिफेलोहेमेटोमा ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बीनीथ द पेरिक्रैनियम। ये हमारा स्कल है, इसके ऊपर ये पेरिक्रैनियम है, और इन दोनों के बीच में जो ब्लड का कलेक्शन होगा इसी को बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा। लोकलाइज स्वेलिंग इसमें होगा। और अब ब्लड सप्लाई, स्कैल्प का ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेंगे इसका एनसीईआरटी ये बीडी चौरसिया बुक से। तो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ब्लड सप्लाई का लेयर होता है हमारे स्कैल्प में, इसमें आर्टेरियल सप्लाई 5 सेट ऑफ आर्टरीज होती है, 3 तो फ्रंट में और 2 पीछे की तरफ। मतलब ये हमारा ईयर, ऑरिकल जो है इसको ईयर बोलते हैं। मतलब ऑरिकल जो है, मान लो ये स्कैल्प है तो ये हमारा ईयर है, तो 3 फ्रंट लेयर से हो गया, ठीक है, और 2 हमारा पीछे की तरफ से आ गया, ओके बच्चों। देखो 3 जो फ्रंट से आया है वो इनडायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आया। आईसीए जो है यहाँ पे आपका डाउट होगा, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। 3 आर्टरी डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से 3 ब्रांचेज निकली, वो तीनों इनडायरेक्टली आकर के सप्लाई दे दी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से 3 ब्रांचेज निकली, वो आकर के ब्लड सप्लाई दे दिया। यहाँ पर देखो एक ही लेक्चर ले रहा हूँ, ये 14-15 मिनट का एक लेक्चर,
और इसमें मैं ब्लड सप्लाई तक खींच लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब इतने दूर समझने के बाद अभी तक क्या पढ़ा हमने, डिफरेंट लेयर के बारे में पढ़ा, उनका एक्सटेंट हमने देख लिया। हमने अब देखा कि भाई जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस स्कैल्प है, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक आई के बारे में, हमने पढ़ लिया, क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी हमने पढ़ लिया। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में बता दिया हमने कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांच से, कुछ इंटीरियर साइड से, कुछ पोस्टीरियर साइड से। बीडी चौरसिया पेज नंबर 65 खोलेंगे तो आपको एक डायग्राम दिखाई देगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको बनाना है। और ये डायग्राम कैसे बनेगा तो अब देखिए, ये गाने पे आप फोकस नहीं करेंगे, ये गाना आसपास में चलते रहता है। अभी आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और इस तरीके से ये हमारे स्कैल्प का एक लेयर है, जो मैं डायग्राम, चूंकि पेंसिल नहीं है अभी हमारे पास तो हम पेंसिल से नहीं बनाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लड सप्लाई। ये हमारा एक सबसे पहला लेयर है, ब्लड सप्लाई हो गया। सुप्राट्रोकियल आर्टरी, ओके, विच इज इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड विच इज इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ, बोलिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मतलब क्या है, जो मैंने बात करा कि 5 हमारे पास सप्लाई है, आर्टरियल सप्लाई। 3 फ्रंट ऑफ ऑरिकल से, 2 बिहाइंड द ऑरिकल से। जो फ्रंट ऑफ ऑरिकल, 2 जो इनडायरेक्टली आती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच आती है। तो सबसे पहला हो गया हमारा सुप्राट्रोक्लियल, ट्रोक्लियर मतलब ऊपर से, ठीक है, ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है। एंड सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट के ऊपर से जाकर के वो सप्लाई देता है, ओके। सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, इस तरीके से ये सप्लाई दे रहा है, ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे विच इज इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड विच इज इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब आते हैं सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ओसिपिटल आर्टरी, विच इज इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये तीनों साला किसका ब्रांच है, ये है हमारा डायरेक्टली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। बात खत्म हो गया बच्चों। तो हमने आर्टरी के 5 नाम याद कर लिए। देखो, अब ट्रिक बता देता हूं। सुप्रा ट्री, सुप्रा नाम की एक लड़की है, वो कहती है कि ट्राई मत करो मेरे पे, वरना आंख निकाल लूंगी। आंख है मतलब ऑर्बिट है, आंख निकाल लूंगी। इनडायरेक्टली समझा रही हूं, मतलब ये इनडायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो लड़का कहता कोई बात नहीं, सुपरफिशियली तो तुम टेम्पो से जाती हो, मतलब सुपरफिशियल टेम्पोरल। लेकिन एक बात बोलूं, मैं तुम्हारा पीछा करते करते अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा हूं। मतलब एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है, एक लड़का एक लड़की से पसंद करता रहता है। इससे आपको याद रहेगा स्कैल्प का आर्टरियल सप्लाई, खून का है ये रिश्ता। अब देखो, लड़का क्या कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो लड़की कहती है ओए, आंख निकाल लूंगी। मतलब सुप्रा, सुप्रा, ट्राई मत कर। सुप्रा नाम की लड़की है, सुप्रा पे ट्राई मत कर, आंख निकाल लूंगी मैं। तो लड़का कहता है मैं भी इनडायरेक्टली मानने वाला नहीं, मैं तो डायरेक्ट ट्राई करूंगा अब तुम पे। अभी तक इनडायरेक्ट ट्राई कर रहा था। और फिर इनडायरेक्ट ट्राई करने के चक्कर में क्या होता है कि आर्टेरियल सप्लाई का चेन चलते रहता है, और फिर उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का वो ब्रांच आ जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट जो हम ये करेंगे, दैट इज आर्टरी जो बिहाइंड थे। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ओसिपिटल आर्टरी एंड देन वी हैव द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ओके। सो दिस वेयर द ब्रांचेज। ये आपको समझ में आ गया। ये डायग्राम जो बीडी चौरसिया के बुक में है, बीडीसी में, ये आपको बना करके ही आना है। इससे क्या होगा, इधर जो है आर्टेरियल सप्लाई, इधर क्या है नर्व सप्लाई, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में कुछ नहीं, 5 नाम याद रखना है। जिसका सप्लाई उसका वीनस ड्रेनेज। सुप्राट्रोक्लियर का सप्लाई सुप्राट्रोक्लियर वेन में ड्रेनेज, सुप्राऑर्बिटल का सुप्राऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल का सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, उसका ओसिपिटल का तो ओसिपिटल वेन। ये हो गया सप्लाई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में बना करके आएंगे।
मैंने जो बताया इमेजिनरी वेन जो वॉल्वलेस वेन होती है उसका दो सेट होता है, पेराइटल इमेजिनरी वेन और पेराइटल फोरामेन कम्युनिकेट विद द स्कैल्प विद द ट्रिपल एस दैट इज सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू, ठीक है। देन मैस्टोइड इमेजिनरी वेन थ्रू मैस्टोइड फोरामेन कम्युनिकेट विद द स्कैल्प विद द सिग्मोइड साइनस। ओके, ये आप एक बार रीडिंग मार लेंगे। डिप्लॉइक वेन आपके सिलेबस का नहीं है, डिप्लॉइक वेन पे आप उतना फोकस नहीं करेंगे। नाउ नर्व सप्लाई में 10 नर्व है ऑन इस साइड ऑफ स्कैल्प, 10 नर्व इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, बिहाइंड द ऑरिकल। कभी भी लिखेंगे इन फ्रंट, बिहाइंड। इन फ्रंट में बात करेंगे तो 4 सेंसरी, एक मोटर हो गया। अब जिसका सप्लाई उसकी बात, नर्व सप्लाई में बात करेंगे नर्व इन फ्रंट ऑफ ऑरिकुलर, एसटी मतलब सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल। अब देखो एसटी एसओ, ट्रिक याद कर लेना है आपको, एसटी एसओ, जेटी टीएफ, एटी। देखो सट सो जाओ, सट से सो जाओ, जगत जेटी, तुम्हें फिक्र क्यों हो रहा है, आज तो पार्टी होगी। कहाँ पार्टी होगी? फ्रंट ऑफ ऑरिकल रेस्टोरेंट में। मतलब एक संत है वो कहता है कि सो जाओ, वरना जेटी को, एक संत है जो कि सोने की बात कर रहा है कि सो जाओ जेटी, वरना तो जेटी कहता है कि तुझे फिक्र क्यों है, आज तो पार्टी करूंगा ऑरिकल के फ्रंट में, ठीक है। दूसरा, अब बिहाइंड द ऑरिकल की बात करते हैं। ओके, वी हैव द बिहाइंड द ऑरिकल की बात। तो बिहाइंड द ऑरिकल में आते हैं नर्व सप्लाई में, तो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ओसिपिटल एंड थर्ड ओसिपिटल। मतलब पी ए पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो कि एक मोटर है, यही वाले के बारे में बात कर रहा था मैं। देन वी हैव द सर्जरी ऑफ द स्कैल्प शुड बी डन अंडर द जनरल एनेस्थेसिया, क्योंकि वहां पे हमें लेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड और पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड में। देन वी हैव द समरी दैट इज लेयर ऑफ स्कैल्प, ये हमने पढ़ लिया। लेयर ऑफ स्कैल्प में वही 5 लेयर, SCALP। नर्व सप्लाई हमने पढ़ लिया, 10 सेट ऑफ नर्व, कुछ आगे कुछ पीछे, संत महात्मा वाला कहानी आपको याद रहेगा हमेशा। ब्लड सप्लाई हमने पढ़ लिया, 5 सेट, 5 में से 2 डायरेक्ट, 2 इनडायरेक्ट, 3 डायरेक्ट। और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर में हो गया मैस्टोइड और ओसिपिटल नोड से, उधर लिम्फ नोड और सुपरफिशियल पायोटिक नोड से आ गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कैल्प। तो आपको कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको। आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है। और आपको बाकी अगर कोई चैप्टर की जरूरत है तो आप मेरे से पर्सनली कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं ऑन माई जूम मीटिंग आईडी और थ्रू द गूगल मीट, ओके, जिसकी चार्जेज अपने अपने हैं। फॉर मोर डिटेल्स मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है लिंक में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। थैंक you, that's all for today. From the 23rd of the November 2022 we are going to start our crash course of the oral pathology third year topic, and we are hoping for more and more participation from your side. Thank you, that's all for today.